I'm CA Akshadeep Srivastav and I'm founder of Srivastav Classes at Pune. Our academy is serving the students for last 20 years. And we are conducting the courses for CMA Intermediate, CMA Final, CA Foundation, Intermediate, Final, apart from the CS courses. I teach accounts, financial reporting, financial management, strategic financial management for CMA and CA students. Today we are going to start with corporate financial reporting for CMA Final. This is one of the most feared subject that CMA students is having at final levels. अब डर लगने की अलग अलग वजह हो सकती हैं. Many of the CMA students they join CMA after doing BSc, might be after doing engineering. So I wish to tell you one thing, that this course, or I will give you the confidence by the time you complete this course, you will get a confidence कि ये course, ये subject उतना मुश्किल नहीं है. मैं marks नहीं दिला सकता, but I can give you the confidence. मैंने खुद BSc करने के बाद में CA ज्वाइन किया. So for me also initially जो FR था, accounts जो था, that was one of the most feared subject. And it took me 6 months to understand the debit credit because I was in a small town. There were no proper coachings for the CA and CMS. And I have to do on my own. But one day, things clicked for me. And I understood the things. And today I can say the things that I understand, very few people, those who are even teaching at the finals level will be understanding. So जो मेरा confidence है, this confidence I wish to pass on to you. And this is very important. When you are giving the exam and if you are having the confidence, then half of the battle is won. हमारा कोई भी, whether it is actual war, it is exam, I consider exam and war similarly. It's a war for the life. It's war for the career. So what happens here when it comes to this financial reporting subject, many of you might be having some fears regarding this. And वो fears क्यों होते हैं? जब हमारे को basics नहीं समझते हैं, तब हमारे को fear create होता है. So we will try to develop a strategy जहाँ पे हमारे को basics भी समझ में आए, advanced level भी समझ में आए. So whenever I will be starting any topic, I will teach you the basics कि ये हम कर क्यों रहे हैं. That is the most important thing. क्योंकि जब तक हमारे को ये समझ में नहीं आएगा कि अकाउंटिंग या यही एंट्री हम क्यों पास कर रहे हैं, तब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा. So both the things are needed. Practices means basic concepts should be clear. Apart from this, for a practical subject, you need to have a lot of practice also. You'll be doing the practice in the class. Apart from that, you will have to do on your own also. So I will be giving some homework. भले ही कम हो, but homework will be there. And I will expect कि तुम वो homework जरूर करो. एक बार भले ही क्लास में उतना concentration नहीं बना हो, but once you will be doing homework, then you understand कि हमारे को दिक्कत आखिर में है कहाँ. क्योंकि जब तक ये हमारे को खुद को अपनी problems पता नहीं होंगी, till that time we won't be able to resolve those issues, those problems. Is this point clear? So homework will be given, and I will expect कि तुम homework करके क्लास में आओ. या फिर even if you are doing it virtually, तब भी homework करो before the next lecture. I will solve all the homework. Yeah, I will show the answers of all the homeworks that I am giving. But still, I am expecting कि तुम homework करो. It will give you the confidence. So what is here? When it comes to the teaching, it's a joint venture between the student and the teacher. ये स्टूडेंट और टीचर के बीच का जॉइंट वेंचर है. I will be putting effort, you also put effort, and if we together we are putting the efforts, तो हमारे results अच्छे ही आएंगे.
And I tell you, in your success, my contribution is hardly 20%. It is your 80% contribution. तो जब तक तुम अपना 80% नहीं दोगे तो मेरे 20% से तुम्हारे को बहुत फायदा नहीं होगा. So if you are giving your 80% and I am giving my full 20%, then it will make 100%. किधर भी साइड से कमी होगी, then it is not going to be 100%. And at final level, 99% commitment means 0%. This is my personal belief. So you should be 100% ready. You have to plan according to that. We have to prepare a strategy in such a way that we are able to complete 100% of the syllabus. And apart from this, we should have adequate practice also and revision before exam. So we'll be discussing all those things कि कैसे हमारे को अपनी strategy बनानी है subject के लिए. Because when it comes to our courses, CMA or CA, it's not about clearing one subject. It is about clearing the group. तो हमारे को group को pass करना है. And what happens कि group में अगर lot of students, you'll be finding lot of students fail in aggregate. And in that you'll be finding कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके 180, 190 मार्क्स आए हैं या 180s या 190s में हैं, बट दे आर नॉट एबल टू गेट 200 मार्क्स. एग्रीगेट क्लियर नहीं हुआ, इंडिविजुअल सारे पेपर्स क्लियर थे, बट एग्रीगेट 50% क्लियर नहीं हुआ. इसका एक रीजन क्या होता है? वन ऑफ द रीजंस दैट दे आर नॉट एबल टू अचीव और get 60% or more marks in any of the subject in the group. ग्रुप के किसी भी पेपर में 60 से ज्यादा मार्क्स नहीं आए. एंड व्हाट हैपेंस कि कोई ना कोई तो पेपर ग्रुप में ऐसा हो ही जाता है जहां पे हम 50 या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं. it is time also. It depends when you are appearing for the paper. उस मोमेंट पे हमारा दिमाग कैसा चल रहा है उस पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं. So what you have to do, you have to target at least one paper. मेरे हिसाब से कम 2 पेपर्स की तैयारी करनी चाहिए जहां पे you will be scoring more than 60% मार्क्स. तो यहाँ पे अगर हम 2 पेपर्स की तैयारी करेंगे जिसमें हम 60+ मार्क्स स्कोर करने की सोच रहे हैं तो एटलीस्ट एक पेपर में तो हमारे 60 से ज्यादा मार्क्स आएंगे ही. एंड आई कैन गिव यू द कॉन्फिडेंस कि CFR कैन बी द सब्जेक्ट वेयर यू कैन स्कोर more than 60% marks. In my opinion, you can, our past students, they have scored in 90s also, 88, 90, 92 marks in this financial reporting paper. Because in theory paper, it is difficult to score. I'm not saying that it is impossible to score, but it is difficult to score 60, 70, 80 marks. But in practical papers, you can score 70-80 मार्क्स. एंड अगर एक पेपर में 60+ मार्क्स आ गए तो किसी पेपर में अगर 50 से कम भी मार्क्स रह गए, सो दैट इज कॉम्पनसेटेड बाय द अदर पेपर. अब हम आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट पे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. अब नाम ही क्या बता रहा है, ये सब्जेक्ट क्या है? इट इज कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. बेसिकली इट इज कंपनी फाइनल अकाउंट. यहाँ पे तुम्हारे को नॉन कॉर्पोरेट्स के बारे में नहीं पढ़ना. जो भी मेजर टॉपिक्स हमारे होंगे वो कंपनी रिलेटेड ही होंगे. एंड जो हमने बाकी सब चीजें थी, रॉयल्टी, डिबेंचर्स और वो सब छोटी छोटी चीजें, ये सब हम सिंगल एंट्री एटसेट्रा, ये सब हम इंटरमीडिएट लेवल तक पढ़ के आ चुके हैं. हमारे बेसिक्स होपफुली क्लियर होंगे. नहीं भी होंगे, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि सबके बेसिक्स क्लियर होंगे, बट वी will try, and I'm always using the word we because it is me and you. It's our joint venture. तो हमारे को स्कोर करना पड़ेगा, हमारे को मेहनत करनी पड़ेगी. हमारे को अगर बेसिक्स कमजोर है तो उन बेसिक्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा. I will try, you also try. Will make this subject interesting.
will make the subject scoring, and I'm confident that you will be able to score marks, even though I can't guarantee. At this level, nobody can guarantee how much marks you will get. Only the person who can guarantee is you. You're having this confidence, you will be able to achieve your targets. That is important thing. तो यहीं से ही सारी चीज शुरू होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस. आई विल ट्राई कि तुम्हारे अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, एंड होपफुली बढ़ेगा भी. सब्जेक्ट इज नॉट डिफिकल्ट. दिस इज, आई एम टेलिंग, at one point of time I also used to think that this is a difficult subject, but now I say that this is one of the easiest subject to score. इसमें बहुत कुछ है ही नहीं. अगर तुम्हारे को बेसिक्स क्लियर है, इन माय ओपिनियन अकाउंटिंग, अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग इज अंडरस्टैंडिंग डेबिट क्रेडिट एंड अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन. अगर तुम्हारे दिमाग में डेबिट क्रेडिट क्लियर है और ट्रांजेक्शंस क्लियर है, देन यू विल बी एबल टू स्कोर. That's all. Is this point clear now? अब हम आते हैं अपने CMA के पेपर पे. So what happens here कि when it comes to the CMA इंस्टीट्यूट एक बहुत अच्छी चीज करता है कि वो हमारे को सेक्शंस में सिलेबस को डिवाइड करके देता है और उसके अप्रोक्सीमेट मार्क्स भी इंडिकेट कर देता है कि इस सेक्शन से इतने मार्क्स पूछे जाएंगे. एंड दिस CFR, ये जो CFR है, उन्होंने क्या करा है, 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है. 5 सेक्शंस कौन से हैं? फर्स्ट इज द गैप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. गैप स्टैंड्स फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस. एंड अकाउंटिंग, जो गैप टर्म है दैट इज यूज्ड इन US, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज द टर्म यूज्ड इन यूरोप एंड इंडिया. नाउ आफ्टर दिस, अब इसमें हमारे AS भी हैं और IND AS भी हैं. AS नोटिफाइड AS जो हमारा गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स ने नोटिफाई किए हुए हैं. उसके अलावा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दोनों हैं. कुछ डिटेल में है, कुछ थोड़ी थोड़ी बेसिक्स चीजें उन्होंने दी हैं. मतलब हमारे को एक बेसिक रफ आइडिया होना चाहिए उन IND AS का, बट कुछ अराउंड 10 स्टैंडर्ड्स वो डिटेल में है. देन आफ्टर दिस द सेक्शन B, दैट इज द अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग. हमने इंटरमीडिएट लेवल पे अमलगमेशन पढ़ा है, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन पढ़ा है, दैट वाज एज पर AS 14. बट अब जो हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन, दैट इज एज पर द IND AS 103. हमारे CMA इंस्टीट्यूट ने ये चेंज, तो 2016 का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड 2016 के सिलेबस में उन्होंने IND AS के अकॉर्डिंग ही बिजनेस कॉम्बिनेशन दिया था, बट जो मटेरियल था उसमें प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन AS 14 के अकॉर्डिंग ही थे. बट अभी रिसेंटली August 2019 में they have revised the material and अभी जो problems and solutions हैं that these are as per the IND AS. वो किसके अकॉर्डिंग है? IND AS 103 के अकॉर्डिंग है. तो हम उसी के हिसाब से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. वेटेज फॉर दिस सेक्शन इज 20%, एंड पहला जो सेक्शन था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड गैप का, दैट वाज आल्सो 20%. नाउ द नेक्स्ट इज द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दिस इज अगेन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स पढ़ा होगा BCom MCom लेवल पे, एंड या फिर किसी भी और लेवल पे पढ़ा हुआ हो सकता है. यहां पे वो जो पढ़ा होगा मोस्ट प्रोबेबली दैट वाज एज पर द AS 21, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा हो सकता है. बट अभी जो हमारे को पढ़ना है दैट इज एज पर द IND AS 110. उसके अलावा हमारे को यहाँ पे IND AS 27, 28, IND AS 111, 112 ये सारे भी पढ़ने पड़ेंगे. तो लगभग 5 IND AS एप्लीकेबल होते हैं फॉर दिस वन टॉपिक. ब्रॉड है, इसका भी जो वेट है दैट इज 20% वेट. एंड एक चीज ध्यान रखो कि पेपर 100 मार्क्स का तो है, बट पेपर में जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 100 से ज्यादा मार्क्स के होते हैं, बिकॉज वन क्वेश्चन इज फॉर ऑप्शन.
सो 116 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली पेपर होता है। तो ये जो बाइफर्केशन है एग्जैक्टली 20 मार्क्स होगा ऐसा जरूरी नहीं है, 20 मार्क्स से ज्यादा भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, बट दिस इज अप्रोक्सीमेट वेट। एंड इंस्टीट्यूट सीएमए इंस्टीट्यूट स्टिक टू दिस बाइफर्केशन। जो मार्क्स उन्होंने यहाँ लिखा है लगभग उतने मार्क्स का वो पूछते हैं। देन apart from this we are having the next section, the section D is development in financial reporting। जो financial reporting का जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट कब से चल रहा है? 50 साल से, 70s 80s 70s से ये डेवलपमेंट शुरू हुआ, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। देन आफ्टर दिस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, जीवीए, ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ये बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे इस सेक्शन में उन्होंने वैल्यूएशन भी रखा हुआ है। सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, शेयर्स, बिजनेस, ये भी चीजें हमारे यहाँ पे है। इसका वेट 25%। दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली छोटे टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ना, रिवाइज करना आसान है। एंड नॉर्मली आई रिकमेंड कि जब हम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो पहले ये वाला सेक्शन कंप्लीट कर लो, बिकॉज इसमें अगर 25% मतलब अराउंड 30 मार्क्स का वो पूछने वाले हैं। अगर 116 से लोगे 25% तो वो लगभग इतना होगा, लगभग 30 मार्क्स का होगा। ये 30 मार्क्स में से यू कैन स्कोर अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स। अब अगर यहाँ पे 20 मार्क्स स्कोर हो गए तो बाकी बचा हुआ 20 मार्क्स, तो अगर सारे के सारे प्रॉब्लम सही शुरुआत करके सब गलत भी कर डालोगे, इसके अलावा बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, इसके प्रॉब्लम्स अगर शुरू करके गलत भी कर डालोगे, बट कुछ तो सही, शुरुआत सही हुआ बट बीच में कहीं अटक गए, तब भी स्टेप मार्किंग पे यू कैन इजीली गेट 20 मार्क्स। सो गेटिंग 40 इज नॉट अ इशू। The first thing I am telling you is getting 40 is not an issue, but you should have the correct strategy for getting these marks. So this is our target area, जहाँ पे हम फोकस करेंगे कि हमारे को मैक्सिमम मार्क्स मिल सके, इसकी प्रिपरेशन भी होगी उसी हिसाब से। देन गवर्नमेंट अकाउंटिंग। ये जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग है, दिस इज थियरी, इसमें से कोई प्रैक्टिकल्स आते नहीं है, बट 15 मार्क्स, 15% वेटेज इज गिवन टू दिस। दे आर आस्किंग द थियरी एंड रिसेंटली दे हैव कंटिन्यूअसली आस्क्ड द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। वंस आई डिस्कस द सिलेबस, आई विल डिस्कस द पेपर ऑल्सो। हम पेपर भी डिस्कस करेंगे एंड उस पेपर में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके का इंस्टीट्यूट का पेपर बनाने का पैटर्न रहता कैसा है और उसको हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए। All these things are important. Remember, important है ये सारी की सारी चीजें कि हमारी स्ट्रेटजी, प्रॉपर स्ट्रेटजी अगर होगी तो हमारे को कम एफर्ट्स में बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। बट अगर हमारी स्ट्रेटजी गलत हो जाएगी तो फिर दिक्कत आती है। Got this point? Now, so ये हमारा एक ब्रॉडर, ये 5 सेक्शंस है। 5 सेक्शंस में हमारे को हमारा ये पूरा का पूरा सिलेबस डिवाइड किया हुआ है एंड वी हैव टू अप्रोच दिस सब्जेक्ट। अब हम इसके बाद में आते हैं कि इंस्टीट्यूट हमारा उसका जब हमारा पेपर दिया है, ये सब्जेक्ट है, टॉपिक है हमारे पास में, तो एक इंस्टीट्यूट का लर्निंग एम होता है कि हमारे को क्या इन सब में, ये जो टॉपिक्स इसमें सीखना क्या है, क्योंकि ये कुछ टॉपिक्स इसमें से इंटरमीडिएट लेवल पे भी होते हैं। तो इंटरमीडिएट लेवल पे जो हमारा लर्निंग एम है, जो हमारा सीखने की जरूरत है, और फाइनल लेवल पे अलग अलग हो जाता है। नाउ वी कम टू द लर्निंग एम। इंस्टीट्यूट हमारे को क्या बोलता है कि क्या कैसे हमारे को इसके लिए प्रिपरेशन, या क्या हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारे को सीखना क्या है इसमें। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट व्हाट दे आर सेइंग, द सिलेबस aims to test the student's ability to demonstrate financial statements for understanding of stakeholders। अब हमारे को यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम क्या है? सब्जेक्ट का नाम हमारा है क्या? दिस इज कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे हम मोस्टली कॉर्पोरेट्स की बात कर रहे हैं। कॉर्पोरेट्स, कंपनीज या फिर कॉर्पोरेशन। जरूरी नहीं है कि एवरी कंपनी माइट मे बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013।
ठीक है। गवर्नमेंट एंटिटीज हो सकती हैं जो किसी स्पेशल एक्ट में रजिस्टर हुआ है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज क्रिएटेड अंडर SBI एक्ट। होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो ऐसी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो उनके लिए स्पेशल एक्ट लाके बनाए गए हैं, बट दीज आर आल्सो कॉर्पोरेट्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? SBI लिमिटेड ही है, ठीक। देन आफ्टर दिस, सो अब यहाँ पे बात आती है स्टेक होल्डर्स। जो टर्म यहाँ पे यूज हुआ था दैट वाज स्टेक होल्डर्स। अब ये जो स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास में जो एक टर्म उन्होंने यूज करी, स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर में प्राइमरीली इट इज शेयर होल्डर्स, बट उसके अलावा भी स्टेक होल्डर्स, बिजनेस में जो स्टेक होल्डर्स हैं, it is government also interested in the business because they are getting the taxes from the businesses, जिससे हमारे सब रोड, ब्रिजेस, डैम्स एटसेट्रा, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है वो टैक्सेस से चल रहा है। एंड मेजर टैक्सेस कम्स फ्रॉम कॉर्पोरेट। इंडिविजुअल टैक्सेस का जो शेयर है वो बहुत कम है। सो गवर्नमेंट होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एटसेट्रा जिन्होंने लोन दिया हुआ है उस एंटिटी को, वो भी स्टेक होल्डर है। अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो उनका भी पैसा डूबेगा ना। किंगफिशर एयरलाइंस बंद हुई तो बैंक्स का भी पैसा डूबा। इसी तरीके से जो दूसरी एंटिटीज हैं, मतलब जो फाइनेंशियल मींस बैंक्स हो गए और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर दूसरे तरीके के जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इन द बिजनेस। एम्प्लॉइज दे आर इंटरेस्टेड, डायरेक्टर्स दे आर इंटरेस्टेड, शेयर होल्डर्स तो ऑब्वियसली हैं ही। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं इन सब के लिए बनाया जाता है, बट प्राइमरीली शेयर होल्डर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनके लिए बनाया जाता है। And who prepares the financial primary responsibility as per the Companies Act 2013 is of directors. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी होती किसकी है? डायरेक्टर्स की होती है। एंड एज अ प्रोफेशनल वी हेल्प देम प्रिपेयर द, हमारे सिग्नेचर, अकाउंटेंट के सिग्नेचर नहीं होते हैं बैलेंस शीट पे, डायरेक्टर्स के सिग्नेचर होते हैं। आई बात समझ में? सो व्हाट इज हियर? सो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स के लिए हमारे को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। देन आफ्टर दिस एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ गैप एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर रिपोर्टिंग कंप्लायंसेस। तो हमारे को यहाँ क्या करना है? जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो गैप, मतलब गैप किसके लिए यूज हो रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स, ठीक है। सो उसकी जो एप्लीकेशन है वो हमारे को समझ में आना चाहिए कि किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या बोला गया है, कैसे उसको अप्लाई करना है, ये सारी की सारी चीजें आनी चाहिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आनी चाहिए हमारे को। हो दिस पॉइंट इज क्लियर? देन फिर उसके बाद में इवैल्यूएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए क्यों जाते हैं? ताकि उनके बेसिस पे हम फ्यूचर में एप्रोप्रिएट डिसीजंस ले सकें। है बात समझ में? तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया, प्रॉफिट पता चल गया, बट अभी वहां से फाइनेंशियल पोजीशन, तुमने हो सकता है रेशियो एनालिसिस पढ़ा हुआ हो, तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना जो है वो बहुत जरूरी है। बिकॉज इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन तो गए, बट इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनका इम्प्लीकेशन नहीं पता है, कौन सी चीज, कोई रेशो खराब हुआ है, डेट इक्विटी रेशो खराब है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, ऑल दीज थिंग्स, दीज आर इम्पॉर्टेंट। उसका हमारे को अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए एंड ये हमें ही समझाना पड़ेगा, बिकॉज नॉट एवरी यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम समझें और उन्हें समझा के भी दें। आई बात समझ में? देन इंटरप्रेट एंड अप्लाई ऑनगोइंग डेवलपमेंट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो ये जो डेवलपमेंट, हमने एक सेक्शन पढ़ा था ना, डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग, वो चीजें बहुत सारी है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, देन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इस तरीके के बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, अभी हम उनको डिस्कस करेंगे, उनको भी समझना है हमारे को। ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, ये कुछ नए नए टर्म्स हैं। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ये सब चीजें हमारे को समझ में आनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हम बात कर रहे हैं
अभी हमने प्रीवियस उसमें देखा था कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग भी है हमारे सिलेबस में। तो जैसे हमारे लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं फॉर द कॉर्पोरेट्स, इसी तरीके से सिमिलरली हमारे गवर्नमेंट अकाउंटिंग के भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हैं, IGFRS कहलाते हैं। एंड ये look, there is basic difference between the government accounting and accounting of the commercial institutions. जो commercial institutions हैं, they do the accounting on going accrual basis. बट जो गवर्नमेंट की अकाउंटिंग है वो होती है कैश सिस्टम पे, कैश बेसिस पे अकाउंटिंग उनकी होती है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। सो गवर्नमेंट अकाउंटिंग में और कमर्शियल अकाउंट्स में डिफरेंस होता है। जैसे हमारे कमर्शियल अकाउंटिंग के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या फिर नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, नोटिफाइड एएस है, ऐसे ही गवर्नमेंट अकाउंटिंग के लिए भी स्टैंडर्ड्स हैं। इवन दो अभी तक वो फुल्ली अप्लाई नहीं हुए हैं, बट हम पढ़ेंगे, ये थियरी पढ़ेंगे जब, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। थियरी है तो हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे उनको अप्लाई करना चाहिए। होप दिस इज क्लियर। तो हमारा लर्निंग एम क्लियर हुआ। हमारे को क्या समझना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाने हैं, उनको कैसा इंटरप्रेट करना है। उसके अलावा हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, गैप्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, इंड एएस हैं, इनको समझना है और इनकी एप्लीकेशन सीखनी कि कैसे ये अप्लाई होंगे। गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग के बारे में भी हमारे को सीखना है। इज दिस क्लियर नाउ? अब हम सेक्शन वाइज अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट सेक्शन दैट वी आर हैविंग इज द गैप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये हमारा वेट इसका कितना है? इट इज 20% weight is there. So 20% weight is for this. Now what we are having, जो हमारे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? गैप्स पढ़ रहे हैं जो इंडिया में एप्लीकेबल है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन इंडिया। मतलब ये हमारे नोटिफाइड एएस हैं, पुराने एएस हैं। इज इट क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे को क्या करना है? ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ना है, ठीक। देन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हमें पता होने चाहिए, एंड ओवरव्यू ऑफ इंड एएस है। अब इसमें आई टेल यू वन बेसिक थिंग कि जब उन्होंने बोला है ओवरव्यू ऑफ इंड एएस, तो इंड एएस पे बेस्ड क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं। तो कुछ इंडेस, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 11 इंडेस हैं जो हमारे को डिटेल में पढ़ने हैं, बाकी का ओवरव्यू है। मतलब उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आर नॉट एक्सपेक्टेड, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर नॉट एक्सपेक्टेड, उसमें हमारे को सिर्फ ओवरव्यू थ्योरी पता होना चाहिए। ऐसे ही ओवरव्यू ऑफ एएस है, बट इंस्टीट्यूट के मटेरियल में उन्होंने एएस पे बेस्ड प्रॉब्लम दिए हैं। तो भले ही वो ओवरव्यू क्यों ना हो, बट फिर भी हमारे को वो चीजें पता होनी चाहिए। इज इट क्लियर? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स उन्होंने यहाँ पे लिखा है एज इफ वो बहुत डिटेल में है हमारे को, बट ऐसा नहीं है। हमारे को इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और इंड एएस के बीच के डिफरेंसेस, जिनको हम बोलते हैं कार्व इन कार्व आउट, जब हमारे इंड एएस बनाए गए तो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करने के दो तरीके हैं। एज इट इज हम अडॉप्ट करते हैं, जिस विदाउट एनी चेंजेस, जो वहां लिखा उसको हमने एज इट इज उठा के यहाँ पे छाप दिया, ठीक। देन दूसरा है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या है? कन्वर्जेंस में हम उन इंड एएस को, सॉरी, उन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को एज इट इज कॉपी नहीं करते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं। ये हम कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंस। तो इंडिया ने, इवन यूएस ने जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं एज इट इज अडॉप्ट नहीं किए हैं, बिकॉज क्या हो जाता है, कंट्री टू कंट्री लॉ बदल जाते हैं, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं, तो जो वहां लिखा हुआ है वो तो यूनिवर्सल सबके लिए उन्होंने बोला। एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड हमारे को अलाउ करता है कि हम चाहें तो उसको एज इट इज अडॉप्ट कर लें या फिर कन्वर्ज कर लें। पाकिस्तान ने एज इट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट कर लिए हैं, बट इंडिया ने कन्वर्जेंस किया है। एंड
कन्वर्जेंस में कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं, कहीं कहीं पे हमने चेंजेस किए हैं, एंड ये जो चेंजेस हैं इनको हम बोलते हैं कार्व इन कार्व आउट। क्या बोला जाता है इनको? कार्व इन कार्व आउट। ठीक, कुछ चीज ऐड कर दी कार्व इन, कुछ चीज हटा दी कार्व आउट, एंड इसके अलावा कुछ और डिफरेंसेस। जो कार्व इन कार्व आउट है वो मेजर डिफरेंसेस हैं, एंड इसके अलावा स्मॉलर डिफरेंसेस, कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस भी हैं हमारे। इज दिस क्लियर? देन ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन बी, दैट इज अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग। अब ये हमारे को क्या करना है, इसमें जो अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग है, सो व्हाट इज हियर, ये हमारा डिफरेंट है फ्रॉम अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। वहां पे भी हमने पढ़ा होगा कि कितने तरीके के मर्जर होते हैं। हमने AS 14 के अकॉर्डिंग पढ़ा था अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है, सो यहाँ पे एक्चुअली जब हम ये बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं इंड AS 103। अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन जब हम पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे AS 14। तो जो तुम पढ़ के आए हो वो था अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन एज पर AS 14। अब जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन, दैट विल बी एज पर द इंड AS 103। होप दिस इज क्लियर नाउ। अब इसमें हम आएंगे कि बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द टर्म बिजनेस कॉम्बिनेशन इज अ ब्रॉडर टर्म एज कंपेयर टू द अमलगमेशन। जो AS 14 का जो स्कोप था दैट वाज वेरी लिमिटेड, बट इंड AS 103 का स्कोप इज वेरी वास्ट, कंपैरेटिवली वास्ट। तो हमारे को बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ना होगा, तो उसमें अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, एसेट स्वैप, ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड। जो AS 14 था उसमें कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कवर नहीं होती थी, बट इंड AS 103 is talking about business combination, and amalgamation and merger is one of the business combination. Keep this point in mind कि ये एक amalgamation is one of the business combination। तो जो AS 14 का स्कोप है वो लिमिटेड है, इंड AS 103 का स्कोप इज वेरी कंपैरेटिवली वेरी वास्ट। देन अब इसमें हमारे को बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग के लिए इंड AS 103 पे आना पड़ेगा, एंड इसी में हमारे को रीस्ट्रक्चरिंग एटसेट्रा ये सब बताया हुआ है। नाउ जब हम अमलगमेशन पढ़ते थे, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन पढ़ते थे, तो वहां पे हमारे पास दो तरीके के थे, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज एंड अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो जो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज एंड अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, ये दो अलग अलग, उसमें 5 कंडीशंस दी हुई थी। इस तरीके की कोई भी कंडीशंस यहाँ पे नहीं है, 5 कंडीशंस उन्होंने यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं फॉर द बिजनेस इन द इंड AS 103। सो प्राइमरीली जो भी हमारी अकाउंटिंग है वो बेसिकली अमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेज ही है। एंड वन जनरल थिंग अबाउट द इंड AS और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इज दैट इट इज बेस्ड ऑन फेयर वैल्यूज। ये फेयर वैल्यू अकाउंटिंग है, जो हम हिस्टोरिक में जो हमारे पुराने स्टैंडर्ड्स थे, मोस्ट ऑफ देम वर टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब अगर मैंने एक लैपटॉप खरीदा 50,000 रुपीज पे 5 years back, so I will show the cost of that laptop at 50,000 only. Is this point clear? Less depreciation. But जो accounting करी मैंने historical cost पे करी। But when it comes to the international standard, हमारे को यहाँ पे किस पे accounting करनी है? Fair value. Fair value for the business. हो सकता है कि उस लैपटॉप की जो यूटिलिटी है, मतलब कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन जो हमारी WDV दिखाई दे रही है, वो उसकी फेयर वैल्यू ना हो आज की डेट में। तो यहाँ पे हमारे कंसेप्ट आ जाते हैं इम्पेयरमेंट एटसेट्रा। ये पहले भी था, बट वहाँ पे बड़ा कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें थी कि हम जो प्राइमरीली पढ़ते थे वो हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते थे, बट कहीं कहीं पे हम फेयर वैल्यू अकाउंटिंग भी अप्लाई करते थे। बट व्हेन इट कम्स टू द इंड AS,
primarily it is fair value. And क्या फेयर वैल्यू कंसेप्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट से बेटर है? शायद बेटर हो सकता, बट एवरीथिंग इज हैविंग टू साइड्स. कुछ जगह पे फायदा भी है, कुछ जगह पे नुकसान भी है. जब 2008 में हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, जो यूएस से जो लेमन ब्रदर्स दे फाइल्ड फॉर इंसॉल्वेंसी, उसके बाद में जो क्राइसिस ट्रिगर हुआ, उसके बाद में पीपल सेड दैट दिस इज द एंड ऑफ द फेयर वैल्यू अकाउंटिंग. बिकॉज व्हाट वाज देयर कि जो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, वो अपने एसेट्स को, जो पेपर्स या फिर शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा, उनको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे थे. एंड 1.5 months बिफोर दे फाइल्ड फॉर इंसॉल्वेंसी, this Lehman Brothers was AAA rated company, and suddenly they filed for insolvency. And it बहुत बड़ा बैंक था. State Bank of India is much smaller. वो उसे State Bank of India is the biggest bank of India. And Lehman Brothers I think 4 to 5 times bigger than this State Bank of India. बहुत बड़ा बैंक था. दुनिया के I think 4th या 5th बैंक में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में थे वो. But it was very big bank. Thick. Now, when they filed for insolvency, it created the fear in the market. And उसकी वजह से यहाँ पे अब कैसा चीजें हो जाती हैं कि लोगों के मन में डर आता है. So people said कि ये वो जो अकाउंटिंग वो कर रहे थे वो फेयर वैल्यू बेस्ड अकाउंटिंग थी. And people said कि नहीं अब ये जो है फेयर वैल्यू का कंसेप्ट तो खत्म हो गया, अब कुछ और करना होगा. एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थे उनको भी रिवाइज किया गया, और अभी भी वो प्रोसेस चल रहा है. हम पढ़ेंगे, बट उसमें कई स्टेजेस में काम हो रहा है, एंड बहुत बड़ी टीम उसमें मिलके वो काम कर रही है. Soon we will be having one more draft for that financial instruments. Is it clear now? After this, so अब हम जो बात कर रहे थे amalgamation the nature of purchase, amalgamation the nature of merger. तो वहाँ पे दो मेथड होते थे, purchase method and pooling of interest method. So by default, Ind AS 103 is having purchase method. That is also based on fair value. But and this amalgamation the nature of merger as such है नहीं, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन. कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन क्या होता है कि ग्रुप ऑफ कंपनीज है, एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी 4 सब्सिडरी हैं या 5 सब्सिडरी हैं, 10 भी हो सकती हैं. उनमें से जो उनकी सब्सिडरी थी एक ही ग्रुप की कंपनीज, उसमें से 2 कंपनीज का मर्जर हो जाता है. तो इन ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शंस. एंड इन कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शंस में वी यूज पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड. इसके अलावा, और उसमें वो 5 कंडीशंस नहीं है, तो अकाउंटिंग इज रिलेटिवली इजी. कि हमारे को क्या करना पड़ता था, वो 5 कंडीशन टेस्ट करो, उसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर फेल हो गई, देन इट वाज नॉट अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर, एंड देन वी आर डूइंग दिस और दैट. तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता था. वो सारा कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है. एंड आई एम हैविंग अ पर्सनल ओपिनियन कि अगर अकाउंटिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसका मतलब वो अकाउंटिंग शायद सही नहीं है. अकाउंटिंग के सही होने के मतलब अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सही नहीं है, तो इट शुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड. एंड यहाँ पे चीजें कंपैरेटिवली आसान है. देन डीमर्जर इज ऑल्सो बिजनेस कॉम्बिनेशन. रिवर्स मर्जर, ये सब हम कहाँ पढ़ते थे, रिस्ट्रक्चरिंग में पढ़ते थे. हो सकता है कि तुमने पढ़ा, हो सकता है नहीं भी पढ़ा हो. देन इसके बाद में वी कम टू द सेक्शन सी. दैट सेक्शन सी इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको हम होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स भी बोलते थे. कुछ लोगों ने हो सकता है कि ये पढ़ा हुआ हो, और हो सकता है कि कुछ ने नहीं भी पढ़ा हो. अगर पढ़ा भी होगा तो मोस्ट प्रोबेबली यू वुड हैव डन एज पर द AS 21. बट यहाँ पे देयर इज अ मेजर शिफ्ट बिटवीन AS 21 एंड Ind AS 110. अब ये जो हमारे को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, दैट वी हैव टू डू एज पर द Ind AS 110. किसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, Ind AS 110 के अकॉर्डिंग हमें ये पढ़ना है यहाँ पे. इज इट क्लियर नाउ? अब इसमें
यहाँ पे मेथड दिए गए हैं, अलग अलग मेथड हैं जो इंड AS 110 बताता है, उसमें से इक्विटी मेथड है, then we are having other methods also, proportionate consolidation method है and full consolidation method है, and different methods हम पढ़ेंगे. मोस्टली जो प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड है वो जॉइंट वेंचर्स के लिए यूज होता है. इक्विटी मेथड जॉइंट वेंचर और एसोसिएट दोनों के लिए यूज हो जाता है. एंड जहां पे होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप है वहां पे हम फुल कंसोलिडेशन मेथड यूज करते हैं. देन इंड AS 27 यहाँ पे वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एंड इंड AS 28 में मतलब यहाँ पे हमारे जो स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होने हैं, इंड AS 27, इंड AS 28, इंड AS 110, इंड AS 111, ये 4 स्टैंडर्ड हम इसी सेक्शन में पढ़ने वाले हैं. ये बात समझ में आई? सो यहाँ पे अलग अलग आएंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. देन आफ्टर दिस वी कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन D, that is development in financial reporting. This is having the highest weight, it is 25 marks. Now इसमें हमारे को क्या पढ़ना है? We have to study sustainability reporting. Sustainability है क्या? Look, business कई बार बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और बंद भी हो जाता है. एक recent example ओयो, एकदम ओयो बहुत पॉपुलर हो गया, एंड सडनली यू विल बी फाइंडिंग कि बहुत सारे होटल्स के बाहर ही लिखा हुआ है कि हम ओयो की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करते हैं. ठीक, उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट थी बट सस्टेनेबल नहीं थी. एंड सस्टेनेबिलिटी होती क्या है? हमारे को क्या करना है? ग्रो तो करना है, बट इस तरीके से ग्रो करें कि हम वो ग्रोथ को सस्टेन कर पाए, मेंटेन कर पाए. तो उसमें हमारे को कुछ रूल्स दिए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि क्या क्या चीजों को, वहां पे एक PPP कंसेप्ट है. ठीक है, पीपल, प्रॉफिट. ठीक है. सो व्हाट वी आर हैविंग बेसिकली कि हमारे को सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना है, लोगों पे भी ध्यान देना है. Is this clear? So what is here? वो सब यहाँ पे आएंगे, and the same thing, यही जो कंसेप्ट है वो ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग है. ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग इज द सेम. लोग बॉटम लाइन क्या होता है? जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसके एंड में क्या होता है? नेट प्रॉफिट लिखा होता है, उसको बोलते हैं बॉटम लाइन, लास्ट की लाइन. सो जो ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग लगभग एक ही चीजें हैं, एक ही कंसेप्ट है. एंड व्हाट इज हियर कि जो ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग है वो क्या बोलता है कि बॉटम लाइन मतलब सिर्फ प्रॉफिट पे नहीं ध्यान देना है. इज दिस पॉइंट क्लियर? सो उसके अलावा हमारे को लोगों पे भी ध्यान देना है. ऐसा नहीं हो कि हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो, उसकी वजह से कल को बैन लग जाए हमारी कंपनी पे, पॉसिबिलिटी हो सकती है ना. ठीक है. एंड इसी कंसेप्ट को जब हम आगे बढ़ाते हैं, देन कम्स इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR. इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पे CSR मैंडेटरी है. कंपनीज एक्ट 2013 में उन्होंने दिया है कि फॉर सर्टेन कंपनीज उनको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वो CSR में देना पड़ेगा. एंड माय पर्सनल ओपिनियन, इट इज बिग फ्रॉड. ये सब NGOs ने मिलके करवाया. एंड क्योंकि क्या है, कंपनी, ये कंपनी का काम नहीं है ना चैरिटी करना, ये सब करना, ये कंपनी का काम नहीं है. तो उन्होंने दिया कि NGO को आप वो अगर कंट्रीब्यूशन दे दोगे तो आपका वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई. इस तरीके की चीजें वहां पे हैं. नाउ अब इसके बाद में नेक्स्ट वी आर हैविंग इज फेयर वैल्यू मेजरमेंट, इंड AS 113. फेयर वैल्यू मेजरमेंट अभी हम डिस्कस कर रहे थे दैट जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं दे आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फेयर वैल्यू. अब फेयर वैल्यू होती क्या है, कैसे फेयर वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहिए, उसके लिए वी आर हैविंग अ सेपरेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दैट इज IFRS 13. उसी का कन्वर्ज्ड स्टैंडर्ड इज
Ind AS 113, that is fair value measurement, ये हम सीखेंगे. Then apart from this we are having integrated reporting है and business responsibility reporting, ये सब development in reporting है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. Then अब इसी के साथ में यहीं पे ही इसी सेक्शन डी में we are having the valuation accounting and reporting of financial instrument. So वहाँ पे हमारे पास कैसा है कि we are having Ind AS 32-107-109, that is dealing with the accounting, measurement and disclosure of financial instruments. Financial instruments कैसे होते हैं? Shares, debentures, etc. These are called as the financial instruments. अब इनकी जो अकाउंटिंग है that is very complicated. तो ये हमारे को सेपरेट मीन्स 3 स्टैंडर्ड में सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में दिया गया है. सो 32 प्रेजेंटेशन है, 107 इज डिस्क्लोजर, 109 इज मेजरमेंट एंड अकाउंटिंग. 3 स्टैंडर्ड में सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग दी गई है, ये हमारे को पढ़ना है. देन जीएसटी अकाउंटिंग है, देन एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, देन वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल. ये वैल्यूएशन वाला जो पार्ट है, पहले सीए इंस्टीट्यूट का जो एफआर का सिलेबस था उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स था, बट रिसेंटली अभी जो उन्होंने अपडेट किया सिलेबस उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स यहां से हटा दिया, बट सीएमए इंस्टीट्यूट ने ये यहां पे डाल दिया, यहाँ पे एडिशन हो गया. तो यहाँ पे हमारा सिलेबस थोड़ा सा बढ़ जाता है कंपैरेटिवली, द सिलेबस इंक्रीजेस. इज इट? then after this in this section D itself we are having share based payment. जो share based payment है वो that is as per Ind AS 102. अब share based payments क्या हैं? जो पेमेंट शेयर्स के फॉर्म में या शेयर्स पे बेस्ड हो उनको हम बोलते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट. एंड हो सकता है कि हमने इंटरमीडिएट लेवल पे ईसॉप्स पढ़ा हो या फिर किसी और लेवल पे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस पढ़े हो. दीज आर शेयर बेस्ड पेमेंट. मतलब हम अपने एम्प्लॉय को क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम से 3 इयर्स तक काम करोगे या फिर तुम्हारी परफॉर्मेंस ऐसी होगी तो हम तुम्हारे को कंपनी के शेयर्स बहुत सस्ते में दे देंगे. से 100 रुपीज का शेयर विल गिव यू एट 10 रुपीज ओनली. तो है क्या वो? अल्टीमेटली वो है तो उसकी सैलरी ही, बट हमने उस सैलरी को कैश में नहीं देके शेयर्स के फॉर्म में दिया. एंड जो बड़ी कंपनीज हैं उनके जो सीईओज एटसेट्रा हैं या बड़े जो ऑफिसर्स हैं उनके यू माइट हैव हर्ड कि किसी को $340 मिलियन का पैकेज मिल रहा है, किसी को $500 मिलियन का पैकेज मिल रहा है, या फिर इसी तरीके के बड़े बड़े पैकेजेस रहते हैं. तो इन पैकेजेस में वेरिएबल कंपोनेंट अक्सर जो होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ईसॉप्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, एंड दैट इज अ सब्सटेंशियल पोर्शन. बिकॉज हमने एक चीज एफएम में इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ा होगा दैट एज अ फाइनेंस मैनेजर हमारे 2 ऑब्जेक्टिव हैं. वन इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड अनदर इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ. क्या है ऑब्जेक्टिव्स? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ. इसमें से जो सुपीरियर ऑब्जेक्टिव है दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ एज कंपेयर टू द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. अल्टीमेटली जो शेयर होल्डर्स है उनकी वेल्थ बढ़नी चाहिए. अब शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी कैसे? अगर उसके शेयर्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी वेल्थ बढ़ जाएगी. अभी मुकेश अंबानी has got richer by $17 billion because रिलायंस कंपनी के शेयर्स का भाव बढ़ गया. एंड जब रिलायंस कंपनी के शेयर्स का भाव बढ़ गया सो व्हाट इज हैपनिंग? उसकी वेल्थ भी बढ़ गई. सो जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ प्रिंसिपल है इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर. सो व्हाट हैपेंस हियर इन दिस केस? जब हम वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ शेयर की बात कर रहे हैं, सो वहां पे अब होगा क्या कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक दे हैव अपॉइंटेड सुंदर पिचाई एज द सीईओ ऑफ गूगल. अब ओनर कोई और है, ही इज द सीईओ. सत्या नाडेला द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. अब ये जो लोग हैं ये एक्चुअली मेजर स्टेक होल्डर्स नहीं है.
दे आर अपॉइंटेड एज द सीईओज, वो एम्प्लॉइज से उनको सीईओ बना दिया गया। अब जो शेयर होल्डर क्या चाहता है कि उसके जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बढ़े, उसके लिए मोटिवेट कैसे करोगे उस सीईओ को? अगर मैं उसको बोलूं कि मैं तुम्हारे को कुछ शेयर्स दूंगा कंपनी के बहुत सस्ते दाम पे, ठीक, अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस ऐसी रहती है, ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है, तो तुम्हारे को इतने लाख शेयर्स मिलेंगे एज ईसॉप, जिनकी एक्चुअल में मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा, बट तुम्हारे को बहुत कम दाम में मिल जाएंगे या ऑलमोस्ट फ्री में मिल जाएंगे। तो क्या होगा, जितनी शेयर की वैल्यू ज्यादा होगी उसका फायदा उतना ही ज्यादा होगा। आई बात समझ में? सपोज आज की डेट में एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज, हमने बोला कि ये तुम्हारे को, तुम हमारे पास 3 साल तक काम करो तो हम तुम्हारे को 10 रुपए में शेयर दे देंगे। अगर उसी शेयर की वैल्यू 3 साल बाद 200 रुपीज हो गई तो उसको ज्यादा प्रॉफिट हो गया ना। आई बात समझ में? सो व्हाट इज हियर दैट व्हेन इट कम्स टू द अकाउंटिंग, सो ये कहलाते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट। बट सिर्फ ईसॉप ही एक शेयर बेस्ड पेमेंट नहीं है, इसके अलावा भी और तरीके के शेयर बेस्ड पेमेंट होते हैं। दैट इज ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस। इज दिस क्लियर? देन इसी डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग में वी आर हैविंग द कंसेप्ट ऑफ XBRL, एक्सटेंडेड बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। Don't know why the institute has kept this XBRL in the syllabus. It's a theory. ठीक है, याद करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को भी XBRL, अब ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पता होगा ना अकाउंटिंग में क्यों दिया गया है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, बट ठीक है, थियरी है, विल सी, इसको कर लेंगे। याद करना है तो याद कर लेंगे, इसमें क्वेश्चंस पूछते भी नहीं है नॉर्मली, बट कांट से कि पूछेगा नहीं इंस्टीट्यूट। थियरी आ सकती है, वो भी 5 मार्क्स की थियरी, अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मार्क्स कभी कभी पूछ लिया जाता है इसमें से। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज द गवर्नमेंट अकाउंटिंग। नाउ ये जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग हमने पहले भी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग और कमर्शियल अकाउंटिंग में डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है यहाँ पे, कैसे डिफरेंस आता है इसमें? हाउ इज हियर, जो गवर्नमेंट, पहला हमारे को कंपैरिजन है बिटवीन गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड कमर्शियल अकाउंटिंग। सो जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग है वो कैश सिस्टम पे बेस्ड है, एंड कमर्शियल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन, कमर्शियल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द अक्रूवल सिस्टम। ठीक, देन अब इसमें जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग का जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कंपनी की अकाउंटिंग होती है, वो तो डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भले ही वो किसी से भी करवाए, हमारे से करवाए, किसी और से करवाए, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर्स की है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। ऐसे ही जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, C&AG, एंड एक्चुअली वन एंटिटी डज द अकाउंटिंग एज वेल एज ऑडिटिंग। ठीक है, सो अब उसमें एक पब्लिक अकाउंट्स ऑफिसर होता है, ये सारी चीजें हैं, आएंगे उसमें। ठीक है, सो एक यहाँ पे जो C&AG है इसके ऊपर एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाई गई है। जो C&AG है वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है? PAC को देता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, उसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा, जो उस रिपोर्ट को गो थ्रू करते हैं, उनके रिकमेंडेशन के बाद में ही वो रिपोर्ट C&AG की फाइनल होती है। ठीक है, नॉर्मली जो PAC है उसका जो चेयरमैन है वो अपोजिशन पार्टी का होता है। दिस इज नॉट अ रूल, इट्स अ प्रेसिडेंस, वो है, चल रहा है, कस्टमरी रूल है। नाउ अब इसके बाद में उन्होंने एक गवर्नमेंट अकाउंटिंग एडवाइजरी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड बनाया है, जो गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा कि कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाने चाहिए, कैसे अकाउंटिंग होनी चाहिए। देन एंड इसमें हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं एंड IGFRS एटसेट्रा, ये सब हम IGAS, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें से लगभग 15 मार्क्स का पूछा जा रहा है एंड फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है, सो विल बी डूइंग दिस। उसके बाद में हम जून 2019 के पेपर पे आ जाते हैं। नाउ ये जो जून 2019 का पेपर मीन्स कोई भी पेपर जो हमारे पास में है, ये हम सिलेबस 2016 के हिसाब से अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो नया सिलेबस जो हमारे को आगे पढ़ना है। हमारे फुल मार्क्स दीज आर 100 मार्क्स एंड इसमें हमारे 2 सेक्शंस, पेपर कितना है
सबको पता है चीजें, बट फिर भी एक बार मैं अपनी तरफ से डिस्कस कर ले रहा हूं. सो पेपर इज ऑफ 3 hours. नाउ अब इसके बाद में व्हाट इज ईयर, जो हमारा पेपर है वो 2 सेक्शंस में है. एक हमारा सेक्शन ए है एंड अनदर इज सेक्शन बी. दिस इज सेक्शन बी. सेक्शन बी, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप है एंड सेक्शन बी सब्जेक्टिव है. नाउ सेक्शन ए इज फॉर 20 मार्क्स. जो हमारा सेक्शन ए है वो 20 मार्क्स के लिए है. सेक्शन ए 20 मार्क्स के लिए है. इसमें 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है एंड व्हाट वी हैव टू डू हियर व्हाट दे आर गिविंग दैट 1 mark for right choice and 1 mark for justification. तो सिर्फ हमारे को यहाँ पे तुक्का नहीं लगाना है. What you have to do? You have to select the correct option as well as you have to give the justification. हमारे को justification भी देना है कि वही आंसर सही क्यों है. तो उसके लिए हो सकता है कि कुछ हमारे को थोड़ा सॉल्व भी करना पड़े कुछ जगह पे. लाइक अगर हम यहाँ पे बात करें, सो हाउ इट इज हियर. लाइक जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ देखें, इसमें क्या हुआ है. XYZ Limited acquired 2,000 equity shares of DEF on 1/4/2017 for a price of rupees 3 lakhs. DEF Limited made a net profit of rupees 80,000 during the year. DEF Limited made a bonus issue of 1 share for every 5 shares held out of the post-acquisition profits earned during 2017-18. The share capital of DEF is 2,50,000 consisted of rupees 100. If the shares of XYZ Limited in pre-acquisition profit of DEF is rupees 56,000, the amount of goodwill capital reserve to be shown in the consolidated balance sheet. ठीक, ये एक्चुअल में हमारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रॉब्लम है. इसमें अब हमारे को क्या करना होगा, हमें एक तो करेक्ट ऑप्शन लिखना होगा एंड अनदर थिंग दैट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गिव द जस्टिफिकेशन. तो हमारे को कैलकुलेशन करके भी बतानी पड़ेगी. से अभी क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है तो मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट सपोज इस जगह पे वट एवर द ऑप्शन यू आर चूजिंग, ठीक है. अब इसमें कितने में उन्होंने 3 लाख रुपीस पे परचेज किया, नेट प्रॉफिट इतना है इस ईयर का, बोनस शेयर इतने इशू हुए एंड शेयर कैपिटल 2,50,000 था. कितने % शेयर्स एक्वायर करें, 2,000 इक्विटी शेयर्स एक्वायर करे हैं एंड उनके 2,500 इक्विटी शेयर्स है. 2,500 इक्विटी शेयर्स कैसे पता चले हमारे को, उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ था कि ये 2,50,000 शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच. ठीक, सो ये हमारे को दिया हुआ है. तो 2,500 में से 2,000 शेयर्स अगर उन्होंने एक्वायर करे, सो 80% शेयर्स दे हैव एक्वायर्ड. सो 80% शेयर्स के लिए उन्होंने 3 लाख रुपीस पे किया. तो इससे हमारे को गुडविल कैपिटल रिजर्व फाइंड आउट करना है. अब ये जो कैलकुलेशन है ये हम कंसोलिडेशन के टाइम पे करते हैं. ठीक, नाउ एट दिस मोमेंट मेरे को आंसर पता भी नहीं है इसका, अभी मैंने सॉल्व नहीं किया. बट ये आंसर तुम कैसे पता लगा सकते हो, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तभी पता लगा सकते हो. सो व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे अब क्या करना है, इसमें वट एवर इज द आंसर, ठीक है. से ये हमारा राइट चॉइस था, ये करेक्ट आंसर था. तो अपने आंसर शीट पे लिखना है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है. करेक्ट आंसर इज बी. फर्स्ट थिंग आई एम टेलिंग यू कि मैंने इसका सॉल्व ही नहीं किया है अभी, मेरे को नहीं पता है कि आंसर सही है या गलत है. फिर उसके बाद में हमारे को एक कैलकुलेशन करके बतानी है कि ये आंसर कैसे आया. ठीक, ये हम कहां सीखने वाले हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम ये सीखेंगे कि ये कैसे कैलकुलेशन करी जाती है गुडविल कैपिटल रिजर्व की. ठीक है. सो
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लेंगे, उसमें आज की डेट में इंड एस 110 एंड 103 के अकॉर्डिंग नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की फेयर वैल्यू भी हम उसमें ऐड करेंगे। उसमें से हम या तो नेट एसेट वैल्यू या फेयर वैल्यू हम सब्सिडरी कंपनी की माइनस करके वी आर गोइंग टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ये हम फाइंड आउट करेंगे। सो एक मार्क, अगर ये चॉइस सही है, ये चॉइस अगर हमारी सही है तो हमारे को एक नंबर तो किस चीज का मिल जाएगा, 1 मार्क मिल जाएगा हमारे को फॉर द करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क विल बी फॉर जस्टिफिकेशन। हमारा 1 मार्क किसका होगा, 1 मार्क हमारा होगा किसका, जस्टिफिकेशन का होगा। ठीक है, सो क्या हो गया, अब यहां पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि हमारा ये जो आंसर था, ये जो भी आंसर था, या तो ये सही होगा या फिर ये गलत होगा। ठीक, सो अगर सपोज ये हमारा आंसर सही है, जो हमने चूज करा ये सही है, बट जस्टिफिकेशन गलत है, तो हमारे को क्या मिलेगा, 1 मार्क मिलेगा इसमें। ठीक, अब अगर आंसर भी सही है, जस्टिफिकेशन भी सही है, तो हमारे को 2 मार्क्स मिलेंगे इसमें। ठीक है, देन आफ्टर दिस 2 मार्क्स मिलेंगे। देन सिमिलरली यहां पे अब क्या हो जाएगा कि सपोज हमारा जो चॉइस थी वो गलत बट जस्टिफिकेशन सही है, तो हमारे को कितने मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क मिलेगा। बात समझ में आई कि कैसा इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन रहा है। सो व्हाट यू हैव टू डू, हमारे को करेक्ट चॉइस भी लेना है यहाँ पे एंड हमारा करेक्ट जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए। बोथ द थिंग्स शुड बी करेक्ट हियर। होप दिस पॉइंट इज क्लियर। इसको एक बार वापस से भी डिस्कस करेंगे। देन इस तरीके के हमारे पास में यहाँ 10 क्वेश्चंस हैं एंड 10 क्वेश्चंस मोस्टली इन CFR पेपर, दीज आर ऑल प्रैक्टिकल, जिनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूं कि किस तरीके के पेपर्स क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हुए हैं। सो ये हमारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। देन सेकंड, ये AS22 का क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने हमारे से पूछा हुआ है, डिफर्ड टैक्स एसेट और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। Then after this they are having market price is this and यहाँ पे रेशियो ऑफ एक्सचेंज, ये अमलगमेशन का उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, बिजनेस कॉम्बिनेशन अमलगमेशन का क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे। देन रिमेंबर वन थिंग कि जून 2019 में जो पेपर था, जून 2019 में जो पेपर था वो इंड एस पे बेस्ड बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं था। ठीक है, अभी थोड़ा सा पैटर्न में चेंज आया है। नाउ आफ्टर दिस ये हमारा वापस से कंसोलिडेशन का प्रॉब्लम आ गया। सो क्या है, एएस, बिजनेस कॉम्बिनेशन, अमलगमेशन, सब से सारे पोर्शन में से वो चीजें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मोस्टली इट इज मोस्टली क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब सब प्रैक्टिकल से रिलेटेड उन्होंने ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे हैं। देन आफ्टर दिस जो हमारा सेक्शन बी आता है, सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप है। इसमें उन्होंने क्या बोला है, 2 क्वेश्चंस की चॉइस है, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। सेक्शन ए में कोई चॉइस नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप में कोई चॉइस नहीं है, बट ये प्योर ऑब्जेक्टिव भी नहीं है बिकॉज जस्टिफिकेशन भी हमारे को उन आंसर्स का देना है। सो हियर यहाँ पे एएस से बेस्ड क्वेश्चंस है। देन यहाँ पे कैसा 7 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस हमारे को करने हैं, तो एक एक जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है, 16 मार्क्स का। 16 इंटू 5, 16 इंटू 5 ये 80 एंड सेक्शन ए 20 मार्क्स का, दिस इज 100। तो क्या है, अल्टीमेटली जो पेपर है वो 132 मार्क्स का है। कितना, 132 मार्क्स का पेपर है। उसमें से हमारे को अटेम्प्ट करना है 100 मार्क्स का। होप दिस पॉइंट इज क्लियर।
सो व्हाट यू हैव गॉट हियर कि हमारे पास में सेक्शन ए में कोई चॉइस नहीं है, बट सेक्शन बी में 2 क्वेश्चंस की हमारे पास में चॉइस है। एंड अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से हम अपने क्वेश्चंस चूज कर सकते हैं। इसमें भी हमारे पास थियरी भी आएगा, लास्ट में नॉर्मली जो लास्ट क्वेश्चन रहता है दैट इज थियरी, या फिर बीच बीच में भी ये जो लास्ट क्वेश्चन है 4 into 4 16 मार्क्स की हमारे पास यहाँ पे थियरी है। ये 16 मार्क्स की थियरी हमारे पास में है। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब इसमें CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, XBRL, Ind AS 113, TBL, Ind AS 109, इसमें प्रैक्टिकल भी आएंगे Ind AS 109 के, एंड थियरी भी हमारी रह सकती है। इसके अलावा ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग से उन्होंने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं 16 मार्क्स का। 15% वेट बोला था, तो मैंने तुम्हारे को पहले ही बताया है कि 15% वेट का मतलब ये नहीं 15 मार्क्स, आउट ऑफ 132 15% आएगा, आउट ऑफ 132 20% होगा। सो इट डिपेंड्स कि तुम अगर चाहो, तुम अगर सारे प्रैक्टिकल कर सकते हो, तो ये लास्ट के अगर तुमने 2 थियरी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करे, अगर तुमने यहाँ पे थियरी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करे तब भी चल सकता है इसमें, ठीक है। देन यू कैन से कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बट ऑलवेज ऑन सेफर साइड थियरी प्रिपेयर करके रखो। जब हम थियरी प्रिपेयर करके रखते हैं तो उसमें हमारे लिए चीजें कंपैरेटिवली आसान होते हैं। नाउ फेयर वैल्यू, ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का है। इसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे, मतलब हर टॉपिक से उन्होंने फाइनेंशियल लायबिलिटी की वैल्यू एज पर Ind AS 109, फाइनेंशियल एसेट की भी वैल्यूएशन हो सकता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी का भी वैल्यूएशन हो सकता है। सो आई वाज जस्ट डिस्कसिंग कि पेपर क्या है। लुक, अभी जो हमारा दिसंबर 19 का पेपर है दैट इज बिट डिफरेंट। वो अभी मेरे पास में इस टाइम पे PDF नहीं है उसका, आई विल डिस्कस दैट एट सम अदर टाइम कि वो पेपर में उन्होंने कैसा दिया है, हम उस पेपर को सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि अभी PDF मेरे पास में अवेलेबल नहीं हुआ है। एंड जैसे ही वो अवेलेबल होगा आई विल डिस्कस दैट पेपर ऑल्सो विद यू कि कैसा हमारा ट्रेंड रिसेंट में आया है। लुक व्हाट वी हैव गॉट हियर, जो हमारा CFR का पेपर है, CFR का जो पेपर है दिस इज कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। CFR का पेपर है, दिस इज फॉर 132 मार्क्स, दिस इज इंक्लूडिंग ऑप्शंस, ठीक। इसमें से हमारे को अटेम्प्ट कितने मार्क्स का करना है, हमें इसमें अटेम्प्ट करना है 100 मार्क्स का, ठीक। सो अल्टीमेटली पेपर 100 मार्क्स का ही है, बट है 132 मार्क्स दिए हुए बिकॉज 2 क्वेश्चंस आर फॉर ऑप्शंस। इज दिस क्लियर? नाउ आफ्टर दिस व्हेन इट कम्स टू दिस पेपर, तो इसमें कितने सेक्शंस हो गए? वी आर हैविंग 2 sections, one is section A and section B। सेक्शन A हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है, एंड सेक्शन B सब्जेक्टिव है, ठीक। अब ये जो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव पेपर में हमारे पास में 10 क्वेश्चंस, 10 questions of 2 marks each, ठीक। बट एक चीज है यहाँ पे, नो
choice, that is we have to attempt all 10 questions. Hope this is understood. ठीक है, अब अटेम्प्ट कर पाए नहीं कर पाए दैट इज डिफरेंट थिंग, बट हमारे पास में जो चॉइस नहीं है यहाँ पे सारे क्वेश्चंस वी आर टेक्निकली वी आर सपोज टू अटेम्प्ट हियर. ठीक, देन व्हेन इट कम्स टू सब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव में हमारे पास में 7 क्वेश्चंस हैं टोटल. Questions 7 to be attempted. Attempted is 5. ठीक, सो जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है ये 20 मार्क्स के लिए है एंड सेक्शन बी 80 मार्क्स का है. ठीक है, सो 5 क्वेश्चंस इनटू 16 मार्क्स, दिस इज 80 मार्क्स. ठीक है, सो 80 मार्क्स हमारे को सेक्शन बी में से मिलेंगे एंड 20 मार्क्स हमारे को सेक्शन ए में से मिलेंगे. होप दिस इज क्लियर, गॉट दिस. देन अब इसके बाद में नेक्स्ट व्हाट यू आर हैविंग, यहां पे थियरी भी हो सकती है और प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं. एंड हियर यू आर हैविंग अप्रॉक्स 32 मार्क्स थियरी. ज्यादा भी हो सकती है, सो can be more. Is this point clear? So 32 मार्क्स की तो थियरी आ ही रही है, 2 क्वेश्चन तो थियरी के हैं ही, लास्ट क्वेश्चन तो रहता ही और गवर्नमेंट अकाउंटिंग में भी थियरी है. सो 32 मार्क्स की थियरी है यहां पे सेक्शन बी में. हियर ऑल्सो कैन बी सम थियरी बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप्स या एमसीक्यू बोलो उसको. मतलब थियरी में से एमसीक्यू, एमसीक्यू कहां से बनाया जा सकता है, प्रैक्टिकल में से भी एमसीक्यू बनाया जा सकता है और थियरी में से भी एमसीक्यू बनाया जा सकता है. तो यहां पे हम जो एमसीक्यू हैं वो कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे, मैक्सिमम विल बी प्रैक्टिकल बेस्ड, बट सम कैन बी थियरी बेस्ड ऑल्सो, बट उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है बिकॉज जस्टिफिकेशन हमारे को चाहिए उसमें. इज दिस पॉइंट क्लियर, गॉट दिस. देन अब हम आ जाते हैं कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है. सो फर्स्ट अगर ऑब्जेक्टिव है सेक्शन ए, अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे, सो सेक्शन ए की जब बात हो रही है दिस इज एमसीक्यू. ठीक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. इसमें व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट से, ये अब यहां पे क्वेश्चन 1 ही रहेगा यहां. ठीक, उसमें हमारा फर्स्ट आया हाउ टू अटेम्प्ट इट. इसमें पहले हमारे को देना होगा कि व्हाट इज आवर करेक्ट आंसर. सो यहां पे करेक्ट चॉइस, अब ये हो सकता है ए हो सकता है या फिर बी, वट एवर इट इज. ठीक है, और सी और डी, वट एवर इट इज, जो भी हम इसमें दे रहे हैं. देन इसके बाद में हमारे को लिखना है यहां जस्टिफिकेशन. तो जस्टिफिकेशन में हमारे को यहां पे सॉल्यूशन देना पड़ेगा. सो we are supposed to give
solution of practical problems and justification of theory, डिपेंडिंग कि हमारा वो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। और सेक्शन बी में तो कोई हमारा कंफ्यूजन है ही नहीं, जैसा पूछा गया थ्योरी है तो थ्योरी लिखनी है, और प्रैक्टिकल है तो उसको सॉल्व करना है। एक जस्ट ब्रीफ थोड़ी सी जो चीज हमारे को ध्यान में रखनी है वो क्या है कि जब हम थ्योरी लिखते हैं तो बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलवेज बी प्रिसाइज, ठीक। सो व्हेन इट कम्स टू थियरी क्वेश्चंस, जब हम यहां पे थियरी में फर्स्ट पॉइंट इज बी प्रिसाइज, ठीक। जितना पूछा गया है उतना ही लिखो, न कम न ज्यादा, ठीक। देन सेकंड इज लेंथ ऑफ आंसर ऑल्सो, मतलब अगर अप्रोक्सीमेटली क्या होता है हमारे 4 मार्क्स की थ्योरी आती है, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली 1 पेज से वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक। 4 मार्क्स थ्योरी, 4 मार्क्स थ्योरी आंसर should not exceed 1 पेज। तो क्या होगा अगर तुम 1 पेज के अंदर 4 मार्क्स का लिखोगे, सो इट विल टेक अराउंड 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स लगेंगे, एंड दैट इज हाउ द मार्क्स एलोकेशन, हमारा टाइम एलोकेशन शुड बी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो आंसर आता है उसको लिखते ही चले जाते हैं। तो अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जामिनर 4 मार्क्स से ज्यादा नहीं दे सकता। इवन इफ यू राइट 10 पेजेस, यू विल हैव टू गिव 4 मार्क्स मैक्सिमम। इज दिस पॉइंट क्लियर? एंड आर्ट्स इज अ प्रोफेशनल एग्जाम। अगर तुम यहां पे ज्यादा लिखोगे तो एग्जामिनर बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, ऐसा नहीं है। तुम इररिलेवेंट चीजें लिखोगे सिर्फ लेंथ ऑफ द आंसर बढ़ाने के लिए, तो एग्जामिनर वहां पे ज्यादा मार्क्स नहीं देता है। बीकॉम में अगर तुम बहुत सारा लिख के आओगे तो टीचर खुश होगा, ज्यादा मार्क्स देगा। वहां पे तो एक्चुअल में टारगेट ही ये होता है कि हम कितने ज्यादा मार्क्स, सॉरी कितना ज्यादा लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स है। शायद तो भी एग्जामिनर, मेरे को नहीं पता, बट शायद तो भी आंसर की लेंथ देख के मार्क्स दे रहा है। तो इररिलेवेंट चीजें भी लिखी हुई बाद में तो फर्क नहीं पड़ता उसको। एंड एक्चुअली क्या होता है, उनको पैसे भी कम मिलते हैं उस हिसाब से, जो आंसर शीट चेक करने के पैसे मिलते हैं वो भी कम मिलते हैं। सो वट इज ये कि उसमें उतना ध्यान से वो चेक नहीं करते हैं। बट आर प्रोफेशनल एग्जाम्स में यहाँ पे एग्जामिनर को, मैं ये नहीं बोल रहा कि सफिशिएंट दिया जाता, बट कंपैरेटिवली ज्यादा दिया जाता है, एंड स्टैंडर्ड्स आर हाई। सो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा प्रोफेशनल लेवल, क्योंकि प्रोफेशनल्स ही चेक कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो प्रोफेशनल लेवल है या स्टैंडर्ड है वो थोड़ा हाई रहता है पेपर चेकिंग का। तो तुम अगर बहुत सारा लिख के आओगे तो बहुत सारे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। बी प्रिसाइज एंड स्टिक टू व्हाट दे हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन। कुछ भी उससे रिलेटेड इधर उधर का फेंकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके साथ में ही मैं यहीं पे खत्म करता हूं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंड फ्रॉम टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद आवर एक्चुअल सिलेबस। उसमें थोड़ा सा हम बेसिक्स रिवाइज करेंगे, कुछ चीजों के बारे में और डिस्कस करेंगे जो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।